اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ کی تفسیر۔ ساتوں قاری الحمد کو دال پر پیش سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ کو مبتدا خبر مانتے ہیں۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ بن انینا اور روبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دال پر زبر کے ساتھ ہے اور فعل یہاں مقدر ہے۔ ابن ابی ابلا رحمۃ اللہ علیہ الحمد کی دال کو اور للہ کے پہلے لام دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اسلام کو پہلے کے تابع کرتے ہیں، اگرچہ اس کی شہادت عربی زبان میں ملتی ہے مگر اس کی شہادت زبان عرب سے ملتی ہے۔ شاذ ہے حسن اور زید بن علی کے ان دونوں حرفوں کو زیر سے پڑھتے ہیں اور لام کے تابع دال کو کرتے ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، اس وجہ سے کہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اس مالک کے سوا اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، اسی کی طرف سے ہیں۔ اسی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے ہیں، اسی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے تمام جسمانی نعمتیں ہمیں بخشیں، پھر بے شمار دنیاوی نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق میں بغیر ہمیں بن مانگے بخشیں۔ اس کی ہمیشگی والی نعمتیں، اس کے تیار کردہ پاکیزہ مقامات جنت کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ پس ہم تو کہتے ہیں کہ اول و آخر اسی مالک کی پاک ذات ہر طرح کی تعریف اور حمد شکر کے لائق ہے۔ الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا خود آپ کی ہے اور اسی ضمن میں یہ فرما دیا ہے کہ تم کہو الحمدللہ۔ بعض نے کہا الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلند و بالا صفتوں سے اس کی ثنا کرنا ہے، اور الشکر للہ کہنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ قول ٹھیک نہیں، اس لیے کہ عربی زبان کو جاننے والے علماء کا اتفاق ہے کہ شکر کی جگہ حمد کا لفظ اور حمد کی جگہ شکر کا لفظ بولتے ہیں۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ابن عطا صوفی بھی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر کے قول کو معتبر کرنے کے لیے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ شکراً کہے تو جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن جریر کے اس دعوے میں اختلاف ہے۔ پچھلے علماء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں زبانی تعریف بیان کرنے کو، خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو اس کی لازم صفتوں پر ہو یا متعدی صفتوں پر، اور شکر صرف متعدی صفتوں پر ہوتا ہے اور وہ دل، زبان اور جملہ ارکان سے ہوتا ہے۔ عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پر دلیل ہیں۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حمد کا لفظ عام ہے یا شکر کا، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں عموم اس حیثیت سے خصوص ہے کہ حمد کا لفظ جس پر واقع ہو وہ عام طور پر شکر کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ شہسواری اور کرم دونوں پر حمد تو ہو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت سے وہ صرف زبان سے ادا ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ خاص اور شکر کا لفظ عام ہے کیونکہ وہ قول، فعل اور نیت تینوں پر بولا جاتا ہے، اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ شہسواری کے حصول پر شکر تو ہو نہیں کہہ سکتے، البتہ شکر تو ہو علی کرمہ و احسانہ الیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھا خلاصہ متاخرین کے قول کا ماحصل، واللہ عالم۔ ابو نصر اسماعیل بن حماد جوہری کہتے ہیں حمد مقابل ہے ضم کے، لہذا یوں کہتے ہیں حمدت الرجل احمد ہو حمدم و محمدتن فہو حمید و محمود۔ تحمید میں حمد سے زیادہ مبالغہ ہے۔ حمد شکر سے عام ہے۔ شکر کہتے ہیں کسی محسن کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا کرنے کو۔ عربی زبان میں شکرتہو اور شکرتہو لہو دونوں کہتے ہیں، لیکن لام کے ساتھ کہنا زیادہ فصیح ہے۔ مدح کا لفظ حمد سے بھی زیادہ عام ہے، اس لیے کہ زندہ، مردہ بلکہ جمادات پر بھی مدح کا لفظ بول سکتے ہیں۔ کھانے اور مکان کی اور ایسی اور چیزوں کی مدح کی جاتی ہے۔ احسان سے پہلے، احسان کے بعد لازم صفتوں پر متعدی صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس کا عام ہونا ثابت ہوا، واللہ عالم۔ حمد کی تصویر اقوال سلف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ اکبر کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، اور بعض روایتوں میں کہ اس کا کہنا اللہ کو بھلا لگتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کلمہ شکر ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر کیا۔ اس کلمے میں شکر کے علاوہ اس کی نعمتوں، ہدایتوں اور احسان وغیرہ کا اقرار بھی ہے۔
किताब अखबार का कौल है कि ये कलमा अल्लाह ताला की सना है। ज़ुहाक कहते हैं ये अल्लाह की चादर है। एक हदीस में भी ऐसा ही है। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह लोगे तो तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लोगे, अब अल्लाह ताला बरकत देगा। असवद बिन शरीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि मैंने ज़ाते बारी ताला की हमद में चंद अशार कहे हैं, अगर इजाज़त हो तो सुनाऊं। फरमाया अल्लाह ताला को अपनी हमद बहुत पसंद है। तिरमज़ी, निसाई और इब्न माजा में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इमाम तिरमज़ी इस हदीस को हसन गरीब कहते हैं। इब्न माजा की एक हदीस है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी और वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दी हुई नेमत ले ली हुई से अफजल होगी। फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत में से किसी को अल्लाह ताला तमाम दुनिया दे दे और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो ये कलमा सारी दुनिया से अफजल होगा। करतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मतलब ये है कि सारी दुनिया दे देना इतनी बड़ी नेमत नहीं जितनी अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक देना है, इसलिए कि दुनिया तो फानी है और इस कलमे का सवाब बाकी ही बाकी है। जैसा कि कुरान पाक में अलबाल वल बनून यानी माल और औलाद दुनिया की जीनत है और नेक अमाल हमेशा बाकी रहने वाले सवाब वाले नेक और उम्मीद वाले हैं। इब्न माजा में इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स ने एक मरतबा कहा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, तो फरिश्ते घबरा गए हम इसका कितना अजर लिखें। आखिर अल्लाह ताला से उन्होंने अर्ज़ की कि तेरे एक बंदे ने एक ऐसा कलमा कहा है कि हम नहीं जानते इसे किस तरह लिखें। परवरदिगार ने बावजूद जानने के उनसे पूछा कि उसने क्या कहा है। उन्होंने बयान किया कि उसने ये कलमा कहा है। फरमाया तुम यूं ही उसे लिख लो, मैं आप उसे अपनी मुलाकात के वक्त इसका अजर दूंगा। करतबी रहमतुल्लाह अलैह एक जमात उलमा से नकल करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफजल है, क्योंकि इसमें तौहीद और हमद दोनों हैं। और उलमा का ख्याल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल है इसलिए कि ईमान और कुफ्र में यही फ़र्क करता है। इसके कहलवाने के लिए कुफ्फार से लड़ाइयाँ की जाती हैं, जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है। एक और मरफू हदीस में अगर जो कुछ मैंने और मुझसे पहले के तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने कहा है इनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू है। हज़रत जाबिर की एक मरफू हदीस पहले गुजर चुकी है कि अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है। अल हमद में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है, यानी हमद की तमाम तर किस्में सब की सब सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए साबित हैं। जैसा कि हदीस में है कि बारी ताला तेरे लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं और तमाम मुल्क है, तेरे ही हाथ तमाम भलाइयाँ हैं और तमाम काम तेरी ही तरफ लौटते हैं। रब कहते हैं मालिक और मुतसर्रफ को। लुगत में इसका इतलाक सरदार और इस्लाह के लिए तब्दीलियाँ करने वाले पर भी होता है और इन सब मानी के एतबार से ज़ात बारी के लिए ये खूब जचता है। रब का लफ्ज़ भी सिवाय अल्लाह ताला के दूसरे पर नहीं कहा जा सकता। हाँ अज़ाफ़त के साथ हो तो और बात है, जैसे रब्बुद्दारी यानी घर वाला वगैरह। बाज़ का तो कौल है कि इसमें आज़म यही है। आलमीन से मुराद आलमीन जमा है आलम की। अल्लाह ताला के सिवा तमाम मखलूक को आलम कहते हैं। लफ्ज़ आलम भी जमा है और इसका वाहिद लफ्ज़ है ही नहीं। आसमान की मखलूक, खुश्की और तरी की मखलूक़ात को भी अवालम यानी कई आलम कहते हैं। इसी तरह एक एक ज़माने एक एक वक्त को भी आलम कहा जाता है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस आयत की तफसीर में मरवी है कि इससे मुराद कुल मखलूक है, खा आसमानों की हो या ज़मीनों की या उनके दरमियान की, खा हमें इसका इल्म हो या ना हो। अला हाज़िल क़ियास इससे जिन्नात और इंसान भी मुराद लिए गए हैं। सईद बिन जुबैर, मुजाहिद और इब्न जरी से भी यही मरवी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी गैर मुतबर सनद से यही मनकूल है। इस कौल की दलील कुरान करीम की एक आयत लियकून लिल आलमीन नज़ीरा भी ली जाती है, यानी ताकि वो आलमीन यानी जिन्न और इंस के लिए डराने वाला हो जाए। फ़िरा और अबू उबैद का कौल है कि समझदार को आलम कहा जाता है, लिहाजा इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, शयातीन को आलम कहा जाएगा, जानवरों को नहीं कहा जाएगा। ज़ैद बिन असलम अबू महीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर रूह वाली चीज़ को आलम कहा जाता है। कतादा कहते हैं हर किस्म को एक आलम कहते हैं। इब्न मरवान बिन हकम और जो जिनका लक़ब खम्मार था, जो बनु उमैया में से अपने ज़माने के खलीफा थे, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 17,000 आलम पैदा किए हैं। आसमानों वाले एक आलम, ज़मीनों वाले सब एक आलम और बाकी को अल्लाह ही जानता है, मखलूक को उनका इल्म नहीं। अबू अलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान कुल एक आलम है, सारे जिन्नात का एक आलम है और इनके सिवा 18,000 या 14,000 आलम और हैं। फरिश्ते ज़मीन पर हैं और ज़मीन के 4 कोने हैं, हर कोने में 3,500 आलम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये कौल बिल्कुल गरीब है और एक ऐसी बातें जब तक किसी सही दलील से साबित न हो मानने के काबिल नहीं होती।
जुमैरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं 1000 उम्मतें हैं, 600 तरी में और 400 खुशकी में। सईद बिन मुसैब से यह भी मरवी है। एक ज़ईफ़ रवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक साल टिड्डियाँ नज़र न आईं, बल्कि तलाश करने के बावजूद पता न चला। आप गमगीन हो गए, यमन, शाम और इराक़ की तरफ सवार दौड़ाए कि कहीं भी टिड्डियाँ नज़र आती हैं या नहीं। तो यमन वाले सवार थोड़ी सी टिड्डियाँ लेकर आए और अमीरुल मोमिनीन के सामने पेश कीं। आपने इन्हें देख कर तकबीर कही और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे अल्लाह ताला ने 1000 उम्मतें पैदा की हैं, जिनमें से 600 तरी में हैं और 400 खुश्की में। इनमें सबसे पहले जो उम्मत हलाक होगी वो टिड्डियाँ होगी। बस इनकी हलाकत के बाद पै दर पे और सब उम्मतें हलाक हो जाएंगी, जिस तरह के तस्बीह का धागा टूट जाए और एक के बाद एक सब मोती जड़ जाते हैं। इस हदीस के रावी मोहम्मद बिन ईसा हलाली ज़ईफ़ हैं। सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह से भी ये कौल मरवी है। वहाब बिन मंबा फरमाते हैं 18,000 आलम हैं, दुनिया की सारी मखलूक इनमें से एक आलम है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 40,000 आलम हैं, सारी दुनिया उनमें से एक आलम है। ज़ुज्जाज कहते हैं अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में जो कुछ पैदा किया है वो सब आलम हैं। करतबी कहते हैं ये कौल सही है, इसलिए कि ये तमाम आलमीन पर मुश्तमल लफ्ज़ है। जैसे फ़िरौन के सवाल के जवाब में कि रब्बुल आलमीन कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आसमान और ज़मीन और दोनों के दरमियान जो कुछ है, इन सब का रब आलम का लफ्ज़ अलामत से मुश्तिक है। इसलिए कि आलम यानी मखलूक अपने पैदा करने वाले और बनाने वाले पर निशान और उसी वहदानियत पर अलामत है। जैसा कि इब्न मोतज़ शायर का कौल है, यानी ताज्जुब है कि किस तरह अल्लाह की नाफरमानी की जाती है और किस तरह उससे इनकार किया जाता है, हालांकि हर चीज़ में निशानी है जो उसकी वहदानियत पर दलालत करती है। अल हम्दो के बाद अबर रहमान रहीम की तफसीर सुनिए।